Standard 8 Unit 4 My Point of View। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 51। एक्टिविटी 9 एविडेंस इज फैक्ट्स दैट शो क्लियरली दैट समथिंग एग्जिस्ट्स और इज ट्रू। एविडेंस का मतलब क्या होता है कि दैट शो क्लियरली, वो क्लियरली दिखाता है कि कोई चीज़ है, वो अस्तित्व है उसका, एंड और इज ट्रू, और वो है, वो सही ही है। एविडेंस इज इंफॉर्मेशन दैट वी कैन यूज टू हेल्प एक्सप्लेन वाई वी थिंक वॉट वी थिंक्स। एविडेंस है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें हेल्प करती है वो समझने के लिए कि हम क्यों वो सोचते हैं, क्यों और क्या हम सोचते हैं। When we give our opinion और आइडिया, जब हम कोई हमारी ओपिनियन देते हैं या कोई आइडिया देते हैं, पीपल ऑफन आस्क, लोग हमेशा ही पूछते हैं, वाई वी बिलीव वॉट वी डू, कि हम इस बारे में क्यों, वॉट वी डू, हम वो करते हैं, इसके लिए क्यों हम बिलीव करते हैं। वन वे देट वी आंसर वाई, और ये एक तरीका है कि हम जिसका आंसर देते हैं कि क्यों। इज़ विथ इंफॉर्मेशन, कि उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन रहती है, एंड फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और अलग अलग तरीके के उसके सोर्स भी होते हैं। नाउ ओपन योर वर्कबुक। वर्कबुक का पेज नंबर आपको ओपन करना है 58। एक्टिविटी 8 की हमारी सॉल्यूशन बाकी है, वो हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू का सब्जेक्ट क्या था? तो आएगा द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यूअर was the interviewer asked Dr. Sagan to give his views on the existence of intelligent extraterrestrials and the many sightings. Second question है, what notion had Dr. Carl Sagan nurtured from his childhood? What did he do to pursue it later? कि बचपन में डॉक्टर सेगन को कौन कौन से नोशन थे, कौन कौन से विचार थे? तो आएगा कि द डॉक्टर कार्ल सेगन had the notion of extraterrestrial life and especially extraterrestrial intelligence from childhood. It swept him up and he have been involved in sending spacecraft to nearby planets to look for life and into the radio search for extraterrestrial intelligence. उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, what would be an absolutely transforming event in human history? What is confusion about it? तो आएगा if we found intelligent life on another planets, it would be an absolutely transforming event in human history. But the stakes are so high on whether it's true or false that we must demand the more rigorous standards of evidence. We have to be very careful. उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ है, वो आपको होमवर्क में खुद करना है। देन द क्वेश्चन 2 इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट इज डॉक्टर सेगन वॉज सपोज टू टॉक ऑन, तो आएगा डी एग्जिस्टेंस ऑफ
intelligent extraterrestrials. Second one is Dr. Sagan discusses the need for C. Physical evidence. Third question is evidence helps us tell. तो आएगा A. What we think is not true. Fourth question is the meaning of the phrase swept somebody up means आएगा A. Tempted, led somebody to think. Fifth, Dr. Carl Sagan was involved in sending spacecraft to nearby planets. तो आएगा D. Both A and B. Sixth question है what would be an absolutely transforming event in human history? A. Finding intelligent life on other planets. 7. What is required in the search of intelligent life on other planets? तो आएगा B. Rigorous standards of evidence. उसके बाद के MCQ है वो आपको खुद कंप्लीट कर लेने हैं, आप टेक्स्ट बुक में से भी फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद में है थर्ड वन क्वेश्चन पुट टिक मार्क्स राइट इन द बॉक्सेस अगेंस्ट द following statements if they are true and cross marks if they are false. First one is Dr. Carl Sagan was interviewed for his views on existence of intelligent extraterrestrials. Right. Second, Dr. Carl Sagan discusses the need for evidence. Right. Third, Carl Sagan did not believe in extraterrestrial intelligence since his childhood. Right. Fourth, the influence of the notion of extraterrestrial life remained for very long in Dr. Carl Sagan's life. Right. 5. Finding intelligent life on other planets would be an absolutely transforming event in human history. Right. ओके बाकी का सब कुछ आपको कर लेना है, जो राइट रॉन्ग है वो कंप्लीट आगे के कर लेने हैं. उसके बाद में है एक्टिविटी 9. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस. 2 और 3 सेंटेंस में आपको आंसर देना है. फर्स्ट है व्हाट इज एविडेंस, वो मैंने आपको अभी समझाया कि एविडेंस क्या है. फिर सेकंड है व्हाट डू यू थिंक डिड द इंडियन आर्मी ट्रूली शो, कि इंडियन आर्मी ने ट्रूली क्या देखा होगा. फिर थर्ड है विच information did you learn from the sources in UFOs in India planes और planets, कि sources जो UFOs in India planes और planets वाले हैं उसमें से आपने क्या लर्न किया. ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद बॉल पेन से ही लिखने हैं. 2 और 3 सेंटेंसेस के हैं. ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. होमवर्क डू योर होमवर्क रेगुलरली, रेगुलर करना है आपको. जब भी कराया जाता है तभी आपको होमवर्क उसी दिन कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, और बॉल पेन से ही अच्छी राइटिंग में सब कंप्लीट करना है. एक्टिविटी 9 तक आपको वर्कबुक पूरी कर लेनी है. ओके, यूनिट 4 एक्टिविटी 9 तक आपको कंप्लीट सब कर लेना है.